Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. I'm fine and hope you are also enjoying your good health. My dear students, be very interested in learning. This is a great opportunity for you people, so you must avail yourself of this great opportunity. Millions of students all over the world can't enjoy such a golden opportunity, so you have to pay the price. Now what we and your parents are doing for you. Welcome to English class lecture 4. The outline of my lecture is following: 10 idioms, third exercise of preposition, 11 to 15 rules for correction, why boys fail in college. So there are 4 points of my lecture. First of all, I would like to discuss idioms. My dear students, on daily basis, in every lecture, I'm gonna teach you people. I'm going to give you 10 idioms, right? You have to mark these idioms from your keybook Sunshine. These are important and selective idioms, just that we are going to discuss. First of all, what you have to do, you have to mark the idioms from your keybook Sunshine. Clear? Beer out, beat about the bush, bed of roses, bed of thorns, behind the scene, bell the cat, below the belt, better half, bird's eye view, black sheep, blessing in disguise. So, my dear students, in today's lecture, I'm not going to explain idioms. If you find any difficulty in understanding these idioms, just you have to let me know. Next time, inshallah, I would like to explain the idioms in detail. uh, this time you have to understand by your own self, so just try to understand. These are very easy. Second thing, this question is very important and very important part to your annual paper, carrying 10 marks, right? आपके सालाना इम्तहान में you will be given IIT idioms and you will have to attend 5 carrying 10 marks. ये 10 नंबर का आपके पेपर में idioms का सवाल आएगा. आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, बार बार दोहराना है, इडियम को सही देखना है, उसका मानी देखना है, फिर उसका जुमला देखना है. इफ़ यू वांट टू बी गुड एट इंग्लिश, अगर तुम ख़ास तौर पर रिटन लैंग्वेज में बेहतर होना चाह रहे हो, तो फिर आपके जितना इडियम्स का यूज़ करेंगे, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट, सो जस्ट यू हैव. The second part of the lecture is preposition. Third exercise of preposition. So again, my dear students, in every lecture I'm going to share with you people one exercise of preposition. These are fixed preposition. ये fixed है कुछ वर्ड्स के साथ. इनका एक ही हल है कि इनको बार बार दोहराओ और अच्छे तरीके से आपको ज़हन हो जाती हैं. Abide by, act upon, adhere to, alarmed at, allot to, answer for, accompanied by, add to, admit of, alight from, amend for, answer to. My dear students, you are not natives. आपकी ये अपनी ज़बान नहीं है, लिहाजा आपको तैयार करने का जो सही तरीका मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप इनका उर्दू में मायने भी देखें. क्लियर? यू हैव की बुक्स. If you find any difficulty in understanding preposition, again you have to let me know. Inshallah, next time I would like to explain in detail. अब further मैं इनको बेहतर करने की कोशिश करूँगा. This time you have to just I can say understand by your own effort. Clear? तो इस दफ़ा आप अपने ही एफर्ट के साथ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें. इनको बार बार दोहराएं. एट द एंड यू विल बी गुड एट दिस.
रूल्स फॉर करेक्शन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। और जितने भी टेस्ट आपको आएंगे, चाहे आप आर्मी का दे रहे हैं, चाहे आप एमडी कैट का दे रहे हैं, चाहे आप ई कैट का दे रहे हैं, तो अगेन ये सेंटेंस करेक्शन का जो होगा पार्ट, ये आपके साथ साथ रहेगा। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। रूल नंबर 11 मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली, टीम एटसेट्रा, और भी वहाँ पर वर्ड्स हैं। ये बेटा वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं। अच्छा, ये कैसे सिंगुलर यूज़ होंगे और कैसे प्लूरल यूज़ होंगे? जब एज अ होल की बात की जाए तो ये सिंगुलर यूज़ होते हैं, जब एज इंडिविजुअल बात हो तो ये प्लूरल यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली, टीम एटसेट्रा, ये सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं आप। रूल नंबर 12 यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये सबसे ज़्यादा अहम है। आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, क्राउड, पब्लिक, असेंबली एटसेट्रा, और यहाँ पर कोई 15 to 20 वर्ड्स हैं। आप इनको सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एज आ होल बात की जाए, लेट्स सपोज हम कमेटी एक की एग्जांपल लेते हैं। कमेटी में 5 to 10 मेंबर्स होते हैं, या से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब कमेटी अगर होल हम करेंगे, कमेटी ने फैसला किया, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, हैज़, द कमेटी इज़, क्लियर। तो अगर कमेटी के मेंबर्स अलग अलग हैं तो हम कहेंगे द कमेटी आर टेकिंग देयर सीट्स, क्लियर, कि वो हर बंदा अपनी अपनी सीट ले रहा है। तो फिर जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो फिर जो है ना वो प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तादाद के लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं। अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, दी नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ उल्ट है, हालांकि दी बाज़ का तो प्लूरैलिटी को शो करता है, ज़्यादा तादाद को शो ज़ाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर वो सिंगुलर वाहद को शो कर रहा है, अ नंबर ऑफ ज़्यादा को शो कर रहा है, क्लियर। सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, a number of students are decreasing, the number of students is present, the number of student is absent from the class, ठीक है। सो इसका ये है कि जस्ट इनके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर या प्लूरल। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, दी नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। मेजोरिटी एंड मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी माइनॉरिटी अगर अकेले हो, मेजोरिटी इज़ प्रेजेंट, मेजोरिटी इज़ absent, मिनॉरिटी इज़ absent, तो इनके साथ इज़ और इज़ लगाएंगे, सॉरी, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर ऑफ आ जाए साथ तो फिर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उसके साथ नॉन भी यूज़ करेंगे और वो भी प्लूरल होगा। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स, मेजोरिटी ऑफ पीपल, फिर आर यूज़ करेंगे वर्ब, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। सो मेजोरिटी ऑफ, द यूज़ ऑफ प्रोनाउन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, सो हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रोज ऐसे रिटन बाय हॉक एडविंसन। ही वॉज बॉर्न इन 1872 and died in 1943, an American mathematician and an experienced educator, and first-hand knowledge of the various problems boys faced during college life. Yes, he had a great experience of the life of college, especially the failure of the students at college level. तो कॉलेज में बीइंग द हेड ऑफ द कॉलेज ये अच्छे तरीके से तजर्बा रखता था कि कॉलेज में आकर बच्चे क्यों नाकाम होते हैं। सो द रीजंस दैट ही इज़ गोइंग टू described in the third essay, why boys fail in college। तो इसमें ये सारी रीजंस देगा। अब आपको भी पता ही अच्छे तरीके से वैसे कॉलेज लेवल पर आकर बच्चे क्यों नाकाम होते हैं। why boys fail in college, this is very important essay, again written by the very why boys fail in college, boys fail in college are of two types। दो तरह के बच्चे होते हैं जो कॉलेज में आकर फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, ट्राई एंड डाउन ट्राई। एक वो जो कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं, और एक कोशिश ही नहीं करते, वो तो डेफिनेटली नाकाम होंगे ना। अब जो कोशिश करते हैं वो कौन से होते हैं? या तो वो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं, अजीबो गरीब किस्म की आदत होती हैं, सफाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करिएगा, उसमें वो सारी नर्वस हैबिट्स बता रहा है उसकी, तो इस वजह से नाकाम। या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं कि खैर है मैट्रिक तक कौन से पढ़ के हमारे ना जो है ना ऐसे ले लिए था हमने, अब भी हो जाएगा। दूसरे जो है ना वो सिरे से नहीं पढ़ते,
तो वो कौन से हैं? उसके अलावा कौन से हैं जो बच्चे नाकाम होते हैं? कॉजेज ऑफ फेलियर, नर्वस हैबिट्स। पहली बात तो यह है कि कुछ ऐसी आदत का जो शिकार होते हैं तो वो उनको बेचैन किए रखती हैं, जिसकी वजह से अपना टाइम बहुत ज़्यादा और कामों में गुजार देते हैं। सेकंड है मिस्टेकन एम्बिशन, कि जब पेरेंट्स कुछ और बना रहे हैं, आप कुछ और बनना चाह रहे हैं। सो योर गोल इज़ मैप्ड आउट बाय योर पेरेंट्स। आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो इंजीनियर का कह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, वो डॉक्टर का कह रहे हैं। दैट इज मिस्टेकन एम्बिशन, ठीक है। थर्ड है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यस, जब हम माली हालात बहुत कमज़ोर हों, सो यू हैव टू अर्न, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली इवन। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे बच्चे कर रहे हैं, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वो भी करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल प्रॉब्लम बीमारियां आती हैं, मेंटल नफ्सियाती बीमारियां आती हैं। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जो है ना बच्चों को नाकाम करने की एक अहम वजह है, स्पेशली कॉलेज लेवल पर। लेस इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्समैन। यस, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, दे हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल इन गेटिंग एजुकेशन। वो तो तालीम हासिल करना ही नहीं चाहते, जस्ट वो स्पोर्ट्समैन होते हैं, पढ़ने के लिए, इंजॉय करने के लिए कॉलेज में घुस आते हैं, वक्त अपना बस फिट उड़ कर गुजार देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और इसी तरह से बाकी बच्चों का भी नुकसान करते हैं। लेज़ी ब्लफर्स टू स्पॉइल द एनवायरनमेंट। यस, कुछ ऐसे कहता है लेज़ी ब्लफर्स। लेज़ी ब्लफर्स नकम्मे किस्म के जो बदमाश किस्म के जो बच्चे हैं ना, वो कॉलेज में कहते दाखिल हो जाते हैं और फिर वो सारा का सारा कॉलेज का माहौल तबाह बर्बाद कर देते हैं, और बाकी भी अपने दोस्तों को, अपनी ग्रुपिंग जो होती है उनको, बच्चों को ख़राब करते हैं और इस तरह से नाकामी का एक ज़रिया बनते हैं। सो पैरा टू पैरा, ये मैंने बड़ा शॉर्टली आपको यहाँ पर हेडिंग्स की सूरत में डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सॉल्यूशंस क्या देता है इसमें, कि देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ठीक है, हम किस तरह से बचा सकते हैं जो मैक्सिमम रेशो ऑफ फेलियर्स की। तो कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस फील्ड्स। पहली बात है कि एट कॉलेज लेवल देयर आर मैनी फील्ड्स। सो स्टूडेंट्स को जो है ना उनके शोबों के लिहाज से, उनके शौक़ के लिहाज से, उनके इंटरेस्ट के लिहाज से जो है ना उनकी रहनुमाई की जाए, और इस तरह से शोबे की अहमियत उनके शौक़ के लिहाज से उजागर की जाए, ताकि वो शौक़ से अपना काम करें। स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस, डिसिप्लिन इज़ अ की टू सक्सेस कहा जाता है। तो नज़्म ज़ब्त सख्त रखना चाहिए। लास्ट पे करियर काउंसलिंग। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई हमने करना क्या है, राइट, दे हैव नो गोल एट ऑल। सो दे शुड बी गाइडेड, दे शुड बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर करियर काउंसलिंग उनको देनी चाहिए। ये कॉलेज में करियर काउंसलिंग कमेटी होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि उनको ना देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या, उस हिसाब से उनको गाइड करे और उसी फील्ड में जाने का कहें, ठीक है, तो ताकि वो डाइवर्ट ना हो। सो these are the solutions at the end the writer gives us in this paragraph. Now the homework that you are supposed to do, write idioms. You have to write 10 idioms जो अभी आपको दिए हैं, याद भी करना है। राइट करेक्शन रूल्स, रूल्स को ज़रूर लिखें साथ साथ, ताकि आपके जहनों में अच्छे तरीके से बैठ जाएँ, ठीक है। रीड थर्ड प्रोज ऐसे वाई बॉयज़ फीलिंग कॉलेज। अब बेटा इस प्रोज ऐसे को आपने खुद से ना ठीक तरह से पढ़ना है। यू हैव टू रीड, अब इंजॉय, जस्ट टेस्ट लें इसका, और एट द